Welcome to the Standards Watch, the flagship initiative of BIS. I'm your host, K. Chandan Rao. Gold is the heartbeat of the Indian economy. Every year, millions of Indians invest in gold not just as a tradition, but also as a savings for the future. But how can one be sure that their investment is as pure as promised? In today's edition of Standards Watch, we will explore how BIS hallmarking scheme ensures the purity and authenticity of every gold you purchase. But before that, let's have a look at the highlights. Chintan Shivir on quality infrastructure for boosting economy and industry in the Northeast conducted in Guwahati by the National Test House in collaboration with BIS on 26 February 2026. Srimati Nidhi Khare, Secretary DOCA, and DG BIS Shri Sanjay Garg graced the event. We need to gear up on these accounts of making people familiarize with the Indian standards that exist. One. The other, to reduce the fear and bring voluntary adherence to the standards, bring value in having a BIS mark. Without manufacturing growth, India cannot become Viksit Bharat by 2047. So we are going to use the latest technologies, AI and machine learning, etc. in our new unified digital platform, where we will be further integrating all the activities so that all our activities, including surveillance, testing, inspections, license, standard, they are all integrated into one platform, and one system will talk to another system in a digital manner, which will reduce the human intervention and which will also improve the efficiency. The Dehradun branch office of BIS participated in the Export Promotion Seminar organized by the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India on 27 February 2026 in Uttar Pradesh. It was aimed to create awareness among MSMEs on improving their products with necessary Indian standards. Search and seizure operation conducted by the Kolkata branch office of BIS at MS Swastik Trading and Company and MS Khemka Ply on 24th February 2026. 300 pieces of plywood products without the mandatory BIS certification seized. Another search and seizure operation was conducted at a jewellery shop in Tamil Nadu. Over 75 lakh rupees of jewellery without the mandatory BIS hallmarking seized. ISO Quality Management System certification awarded to the State Crime Records Bureau of the Delhi Police Crime Branch by the Bureau of Indian Standards for its management of digital crime records and coordinating with district units and police stations in real time. A 2-day capsule course on IS 374 for specification of electric ceiling type fans and regulators organized for quality control personnel by the Hyderabad branch office of BIS. A Consumer Awareness Bharat Yatra was successfully organized by the Patna branch office of BIS on 24th February 2026. Over 40 students and consumers participated in the event. A 2-day regional workshop on consumer protection held at Raipur branch office of BIS on 21st and 22nd February 2026. Srimati Nidhi Khare, Secretary for the Department of Consumer Affairs, and Shri Anupam Mishra, Additional Secretary, graced the event. Since its inception in 2000 as a voluntary scheme to the mandatory HUID scheme in 2021, the Bureau of Indian Standards has revolutionized India's hallmarking ecosystem. Through the implementation of the 6-digit alphanumeric code, the framework of gold purity has been made accessible to the consumer's fingertips. Let's explore how BIS has transformed the way India buys gold today. Since ancient times, the love for gold has been eternal in most Indian families. From buying it for a wedding or an investment, gold has often been considered an important asset for Indian households.
For centuries, the purity of gold was a matter of faith, relying on the mere promise by the jeweler. But today, trust is backed with scientific proof. Every piece of jewelry now comes with a unique code, making it possible to scientifically verify its purity and authenticity. But have you ever wondered how this was achieved? It is the result of the hallmarking system for gold and silver jewelry implemented by the Bureau of Indian Standards (BIS). To ascertain that every piece of gold in India is as pure as promised, BIS launched the historic hallmarking scheme in 2000, which was voluntary. The scheme has played a vital role in protecting consumers from adulteration and dubious purchase of gold and silver. Under the scheme, the hallmark consisted of the BIS logo, fineness grade indicated in carats 22K, 18K, 14K, assaying center and jewelry identification marks. The network of assaying and hallmarking centers was established by BIS across India, forming the backbone of India's hallmarking ecosystem for testing and authenticating the purity of these articles. To safeguard consumer interest and ensure transparency, the HUID-based mandatory gold hallmarking scheme was introduced in 2021. It was initially implemented in 256 districts across the country that had at least one assaying and hallmarking center and has since been extended to 380 districts with the expansion of hallmarking infrastructure. The mandatory hallmarking scheme ensures every gold jewelry article carries the 3 marks of purity: the BIS logo, purity or fineness grade, and a unique alphanumeric 6-digit HUID code. Since July 2021, more than 60 crores of gold items have been hallmarked with HUID. Under this, gold jewelry and other gold artifacts including yellow, red, rose, pink and white gold are hallmarked in accordance with IS 1417, covering purity grades and caratages. However, there are certain exemptions also to the mandatory hallmarking scheme. Some of the key exclusions include an article with weight less than 2 grams, any article which is intended to be useful for medical, dental, veterinary, scientific or industrial purposes, special categories of jewelry like kundan, polki and jadau, gold watch and fountain pen. BIS also introduced hallmarking for silver jewelry and artifacts in 2005 on a voluntary basis. In September 2025, the HUID-based hallmarking scheme for silver artifacts was also launched in line with the existing gold hallmarking scheme. Now, the silver hallmarking consists of BIS logo with silver written, purity grade or fineness and the 6-digit HUID code. Since September 2025, more than 30 lakh silver articles have been hallmarked, boosting consumer confidence and fairer trade practices. For consumer trust and empowerment, the BIS Care app acts as a one-stop solution for consumers, whereby simply entering the unique HUID code, the authenticity of products can be checked and complaints can be lodged. Under the provisions of BIS Act 2016, the National Standards Body of India is empowered to conduct regular field inspections to examine and cross-verify the details of the hallmarked jewelry and check the genuineness of the jewelry or artifacts. Thus, BIS undertakes enforcement activities against fraudulent activities from time to time. With the hallmarking ecosystem expanding nationwide and more than 2 lakh jewelers embracing the scheme, BIS has evidently instilled consumer confidence and trust with its 3 marks of purity. Look for the BIS hallmark before purchasing any gold article, because hallmark hai to sona hai. Evidently, the BIS hallmarking scheme has built a powerful framework of checks and balances for gold purchase.
Let us understand the impact of BIS hallmarking more deeply with our experts. Ms. Chitra Gupta, Deputy Director General, Hallmarking, Bureau of Indian Standards; Mr. Rajesh Rokde, Chairman, All India Gem and Jewelry Domestic Council; and Mr. Abhishek Nikam, Secretary, Indian Association of Hallmarking Center, in conversation with Mr. Indrajit Singh, Scientist E, Bureau of Indian Standards. So, let's watch Standards Talk. आप सभी का स्वागत है आज के इस प्रोग्राम में। अब मैडम, जैसा हम देख रहे हैं कि अभी गोल्ड के प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं और कंज्यूमर्स लेने जाता है तो वो कैसे इंश्योर करे उससे वैल्यू फॉर मनी मिल रही है। सरकार ने गोल्ड की वैल्यू को देखते हुए जनता के प्रोटेक्शन के लिए, उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गोल्ड हॉलमार्किंग को मैंडेटरी किया था जुलाई 2021 से। तब से लेके अब तक हम लोग 60 करोड़ से ज़्यादा आर्टिकल हॉलमार्क कर चुके हैं। दैट शोज़ कि जनता में इसको कितना इम्पॉर्टेंट जाना गया है, तो इसीलिए इसके ऊपर हमारी हॉलमार्किंग मैंडेटरी हुई है। इसके लिए हमारे पास जो दो आर्म्स हैं हमारे, एक ज्वेलर्स है और दूसरा है एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर्स, जो कि उसकी प्योरिटी को चेक करके, उसको टेस्ट करके हॉलमार्क लगाते हैं। जब आपका आर्टिकल हॉलमार्क हो गया है तो ये हमने सारी जनता में एक अवेयरनेस फैलाया है कि BIS की एक BIS केयर ऐप है, उसको आप डाउनलोड कर लें। हर कंज्यूमर से हमारी ये गुजारिश है कि वो उसको डाउनलोड कर लें और जब भी कोई वो गोल्ड की ज्वेलरी ख़रीदते हैं, कोई भी आर्टिकल भी ख़रीदते हैं गोल्ड का, तो उसके ऊपर एक 6 डिजिट का अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड होता है, वो BIS केयर ऐप में जाके चेक कर सकते हैं, जिससे कि उसमें उनको उसकी प्योरिटी मिल जाएगी, जिस AHC ने उसको हॉलमार्क किया है उसके डिटेल मिल जाएंगे और साथ ही साथ में जो ज्वेलर उसको बेच रहा है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी मिल जाएगा। तो उससे उसको एक ही उसकी जो ऑथेंटिसिटी है, जो उसकी प्योरिटी है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आर्टिकल की पिक्चर और HUID की पिक्चर दोनों और आर्टिकल का वेट, ये अगर हम चीज़ें अपनी कंज्यूमर को दे देते हैं, और ये हमने BIS केयर ऐप पे भी प्रोविज़न बनाया था जब हम पायलट प्रोजेक्ट कर रहे थे। 3 महीने हमने ये प्रोजेक्ट चलाया है जिसमें 12 लाख से ज़्यादा आर्टिकल हॉलमार्क हुए हैं और जो हमें फीडबैक मिला है कि ये बहुत अच्छा फीचर है, कंज्यूमर्स बहुत खुश हुए हैं। ज्वेलर्स को भी उसमें एक ये फ़ायदा दिखाई दिया है कि अब कस्टमर को उनको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, जो इन्फॉर्मेशन वो बता रहे हैं वही चीज़ BIS केयर ऐप में है, तो ऑथेंटिसिटी दोनों जगह से उसकी बढ़ गई है। तो अब ये हमारा जो प्रोजेक्ट है ये कंज्यूमर इंटरेस्ट में जल्दी ही लागू होने वाला है। एज ए ज्वेलर आपको क्या बेनिफिट रहा कि हॉलमार्किंग स्कीम का क्या बेनिफिट आप सोच पा रहे हैं? पहले एक सिर्फ ज्वेलर के साख पे माल बेचा जाता था, इसमें अभी गवर्नमेंट शासन और प्रशासन की मान्यता जब मिल गई तो जब कभी भी हम कोई ज्वेलरी बेचते हैं तो उसे गारंटी, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता, ये दोनों चीज़ मिल जाने के कारण हमें वो ज्वेलरी बेचना बहुत ईजी हो गया है। अभी ऐसा हो गया है कि एक बार हमने बोल दिया कि हॉलमार्क है तो कस्टमर हाँ ठीक है, इट इज़ प्योर, तो ये कॉन्फिडेंस हम लोग को मिला। इस वजह से वी आर वेरी हैप्पी कि एक ट्रांसपेरेंसी के साथ हम ये व्यवसाय कर पा रहे हैं। हॉलमार्किंग सेंटर एंगल से आपको क्या बेनिफिट रहा और आपको भी कुछ कंज्यूमर से फीडबैक मिली इस स्कीम के बारे में? हॉलमार्किंग सेंटर ये तो पहले से BIS का एक्सटेंडेड आर्म है। हम BIS के लिए ही काम कर रहे हैं क्योंकि हम जो भी कंप्लायंस है, हम जो भी स्टैंडर्ड कर रहे हैं, ये सारी BIS के अंतर्गत ही आती है और उसको हमें फॉलो करनी है सर जी। हमारी इंडस्ट्री तो इसके लिए बहुत रेडी है, मतलब ऐसे कुछ नहीं है कि हम नहीं कर पाएंगे। BIS हमेशा हेल्प करने के लिए है और जो भी कुछ करते हैं स्टेक होल्डर को लेके ही कर रही है, चैलेंजेस को रिजॉल्व करने का ही ये है। कभी कभी कॉमन कंज्यूमर के मन में थोड़ी शंका हो सकती है कि है तो ये ठीक, बट क्या मैंने इतना खर्चा किया, क्या ज्वेलरी अभी भी सही है? इसके लिए एक और प्रावधान जो सरकार ने किया है कि आम आदमी भी अपनी ज्वेलरी या कोई भी आर्टिकल है AHCs पे जाकर के अपना टेस्ट करवा सकता है। इसके 2 टेस्ट होते हैं, एक XRF होता है और एक फायर एसिड टेस्ट होता है। XRF के लिए तो उसको कोई पेमेंट नहीं करनी है। दूसरा होता है हमारा फायर एसिड टेस्ट विच विल गिव यू द एक्यूरेट प्योरिटी ऑफ द आर्टिकल, जिसकी बहुत नॉमिनल फीस है। एक आर्टिकल के लिए आपके 200 रुपये लगते हैं और AHC आपको टेस्ट करने के बाद उसकी टेस्ट रिपोर्ट भी देता है। हमने टेस्ट कराया और वो कम निकल आया, तो क्या कंज्यूमर के पास कोई प्रावधान है कि वो आगे कुछ कंपनसेशन उसको मिले या क्या कर सकता है वो? अगर कंज्यूमर को ये लगता है कि वैल्यू जो अगर सपोज ये 916 था और वो 916 से कम है, उसकी कैरेटेज 914 आ गई या 910 आ गई, तो उसको उसका 2 टाइम्स जो डिफरेंस है डिक्लेयर्ड वैल्यू से,
उसका 2 टाइम्स ऑफ वैल्यू का पैसा ज्वेलर को उसको देना पड़ेगा। स्कीम बहुत बढ़िया है, सब अच्छा चल रहा है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ कभी परफेक्ट नहीं होती। तो आपको क्या लगता है कि इसे और बेहतर बनाने के लिए क्या किया जा सकता है, ज्वेलर्स की तरफ से भी और BIS की तरफ से भी? पूरे भारत में जिस तरीके की ज्वेलरी की वर्किंग है, उसमें हर 100 किलोमीटर पे डिज़ाइन चेंज होती है, हर 100 किलोमीटर पे बोली चेंज होती है। इस वजह से पूरे हिंदुस्तान में हॉलमार्किंग मैंडेटरी हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब कभी भी हॉलमार्किंग की बात आती है तो हम इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं कि जब कभी भी किसी एक ज्वेलर्स के यहाँ से हॉलमार्किंग की चीज़ खरीदने के बाद वो इजीली दूसरी जगह एक्सचेंज करने की जो गारंटी मिल जाती है, इस वजह से एक ज्वेलर्स को दूसरे ज्वेलर की गारंटी, दूसरे ज्वेलर को तीसरे ज्वेलर की गारंटी, इस वजह से बिजनेस में इसका फ़ायदा होता है और कंज्यूमर को भी इसका सुख मिलता है कि मैंने ली हुई ज्वेलरी। नहीं तो पहले ऐसा होता था कि मैंने कोई ज्वेलरी खरीदी है तो मैं केवल उसी ज्वेलर्स के पास जाऊँ तो शायद इसे एक्सचेंज वैल्यू सही मिले। तो ये एक फ़ायदा हमें बहुत बड़ा मिला है। और चैलेंजेस में भी अगर मैं कहूँ तो आज के तारीख में एक फेक हॉलमार्किंग का डर ऑलवेज पड़ा रहता है, वो कभी ज़िंदगी में न हो। इसके लिए इसे जितना फुल प्रूफ किया जाए वो हमारे लिए बेहतरीन होगा, क्योंकि हाई वैल्यू कोई अगर चीज़ है तो वो 100% फुल प्रूफ हो जाए, इससे बढ़िया शायद कुछ नहीं होगा। हॉलमार्किंग सेंटर की जोग्राफिकल स्प्रेड अगर हमें बढ़ानी हो तो आपका क्या सुझाव है इसके लिए? BIS ने एक स्कीम खोली है जिसको कहते हैं ऑफ साइट सेंटर्स। मानो कि मेरा जो मेन सेंटर है जहाँ पे असाइनिंग होती है, उसके 100 किलोमीटर के दायरे में आप 5 ऑफ साइट सेंटर खोल सकते हैं। तो इसका ये फ़ायदा है कि जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि अगर आप देखेंगे तो आज एक सेंटर खोलने के लिए बेयर मिनिमम आपको 50 लाख से 1 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है। और आज के इस घड़ी में इतना इन्वेस्ट करके अगर उसमें रिटर्न नहीं है तो इसके लिए काफ़ी लोग 2 बार सोचते हैं। BIS ने इनिशियली इसके लिए जब ये स्कीम लॉन्च की थी तब मॉनेटरी ग्रांट थी 30%, 50% डिपेंडिंग अपॉन द जोग्राफिकल एरिया थी। लेकिन बाद में जब इसका जो आज के तारीख में 1600 सेंटर है ऑल ओवर इंडिया में, तो अब वो स्कीम नहीं चालू है। बट आई थिंक सो ये पॉलिसी मैटर है, तो BIS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात करके कुछ अगर ये कर सकती है तो ऑफ साइट सेंटर बढ़ेंगे तो ये जो छोटे छोटे जो गाँव है जहाँ पे ज्वेलर्स चाहते हैं कि सेंटर्स खुले, तो ये उनको एक प्रोत्साहन मिल सकता है उसके लिए। तो BIS कुछ सिल्वर हॉलमार्किंग के बारे में आगे कुछ विचार कर रहा है? क्योंकि सिल्वर के ज्वेलर्स भी थोड़े हैं, सेंटर्स भी थोड़े हैं। सरकार इसके बारे में भी सोच रही है कि अगर इसको भी हम मैंडेटरी कर दें, क्योंकि अगेन इट इज़ अगेन अ प्रीशियस मेटल और उसमें भी प्योरिटी इज़ अ वेरी बिग इशू। अगेन वैल्यू फॉर मनी आपको मिल रहा है, लेकिन उसमें एक काम हमने किया है जो हमने सितंबर 2025 में किया था। सिल्वर पे पहले जो हॉलमार्क हमारा हो रहा था वो BIS का लोगो हो गया विद सिल्वर, और ज्वेलर्स लोगो एंड हॉलमार्किंग है उसका, और फाइननेस आती थी, ये 4 मार्क थे। तो इसको भी हमने गोल्ड की तरह ही सिंप्लीफाई कर दिया है, जिसमें हमारा BIS का लोगो रहेगा, प्योरिटी रहेगी और HUID रहेगी। तो इसमें भी अब 6 डिजिट अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड आने लगा है 1 सितंबर 2025 से। आगे आगे सरकार का, और जैसे जैसे इसका रेट बढ़ रहा है, ये मैं बता दूं कि हमारे जो AHCs हैं सिल्वर के, वो भी बढ़ते जा रहे हैं। उनको भी शायद इन एंटिसिपेशन की ये भी किसी ना किसी दिन मैंडेटरी हो जाएगा, जिसके बारे में हम लोग काफ़ी अभी काम कर रहे हैं कि अगर उसको हमें मैंडेटरी करना है तो सबसे पहले बहुत ज़रूरी होता है कि हमारे पास उसका इंफ्रास्ट्रक्चर हो। तो अभी तक हम लोग 30 लाख से ज़्यादा आर्टिकल सिल्वर के सितंबर से लेके अब तक हम HUID के थ्रू हॉलमार्क कर चुके हैं, और आने वाले दिनों में अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना रोबस्ट हो जाएगा तो उसके ऊपर भी विचार होगा उसको मैंडेटरी करने का। तो एज ए हॉलमार्किंग सेंटर एसोसिएशन आप इसके बारे में कुछ कदम उठा रहे हैं कि सरकार का सहयोग किया जाए सिल्वर हॉलमार्किंग मैंडेटरी करने के लिए? एज ऑन डेट 200+ हॉलमार्क सेंटर है जिनके पास सिल्वर लाइसेंस है हॉलमार्किंग के। जो 200 सेंटर है तो रेडी है सर। अगर कल डिमांड अगर हो रही है तो जो आज 1600 सेंटर है सर, उनको सिर्फ एक ही मशीन ऐड करनी है, कोई बड़ी ऐसी बदलाव नहीं करना है। बस उनको एक मशीन ऐड करनी है सिल्वर टेस्टिंग की, जिसको टाइट्रेटर बोलते हैं। उसको ऐड करके इमीडिएटली 1600 हॉलमार्किंग सिल्वर हॉलमार्क कर सकते हैं। बस यही है, जैसे जैसे डिमांड आ रहा है वहाँ पे खुल रहे हैं, जैसे डिमांड बढ़ रहा है वैसे वैसे और बढ़ते जा रहे हैं। रोकने साहब, आपकी क्या राय है सिल्वर हॉलमार्किंग मैंडेटरी करने के बारे में? बिल्कुल मैंडेटरी होना चाहिए, उसमें कोई दो मत नहीं है। ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल बिल्कुल पारदर्शिता से व्यापार हो, उसका बिल्कुल सहमति से काम करता है, और यही कहता है हम लोग तो कि सेल व्हाट यू से व्हाट यू सेल। हमारा स्पष्ट इसमें कहीं पर भी इसमें किसी प्रकार का विरोधाभास नहीं है। नॉर्मली गोल्ड के मुकाबले अगर मैं सिल्वर को देखता हूँ तो 10 गुना स्टॉक होता है,
अगर 800 टन के आसपास अगर गोल्ड अगर एक साल में इंपोर्ट होता है तो वो 4000 टन इंपोर्ट होता है सिल्वर। तो ये काफ़ी बड़ा आंकड़ा होता है, उसमें 400 टन के आसपास की ज्वेलरी होती है। तो अगर ये बड़ा आंकड़ा है और कंज्यूमर को प्योरिटी प्रॉपर मिलनी चाहिए, तो नो डाउट सिल्वर अगर मैंडेटरी हो जाता है तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो गए और कंज्यूमर भी इसमें खुश होगा, पारदर्शिता मिलेगी, कॉन्फिडेंस मिलेगा, एक ज्वेलर की जिम्मेदारी भी कम होगी कि एटलीस्ट थर्ड पार्टी कंफर्मेशन, वो भी सरकार की तरफ से कंफर्मेशन मिल रहा है, तो वो बेचने का मजा ही कुछ और रहेगा। कॉमन कंज्यूमर अगर ज्वेलरी स्टोर पर जाता है ज्वेलरी खरीदने के लिए, तो उसे क्या क्या ध्यान रखना चाहिए जिससे उसे वहाँ पे कुछ ठगा ना जाए? वो सबसे पहले तो वो जो हॉलमार्क ज्वेलरी बेच रहा है उसकी दुकान के बाद BIS का लोगो देख लें, और जब ज्वेलरी खरीदने जाए तो ज्वेलर से कहे कि मुझे हॉलमार्क ज्वेलरी ही खरीदनी है। जो ज्वेलर जब हॉलमार्क ज्वेलरी दे तो उसके ऊपर उसको 6 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक कोड चेक करना चाहिए, जिसके लिए उसको एक लेंस ज्वेलर से वो मांग सकता है, और ज्वेलर के लिए मैंडेटरी है कि वो उस लेंस को रखे और जब कस्टमर डिमांड करे तो उसको वो दे देना चाहिए, ताकि वो उसमें अपना HUID चेक कर ले और फिर वो उसको BIS केयर ऐप से चेक कर सकता है। आप सबका भी यहाँ आने के लिए बहुत धन्यवाद, और आपने बहुत मार्गदर्शन किया सभी हितधारकों का। धन्यवाद। हॉलमार्क ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए BIS आपके लिए लाया है BIS केयर ऐप। इसे अपने फोन में डाउनलोड कर लीजिए। जब भी गोल्ड ज्वेलरी खरीदे, BIS केयर ऐप से हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी की ऑथेंटिसिटी चेक करें। समस्या होने पर आप इसी ऐप से कंप्लेन भी कर सकते हैं। तो याद रखें, हॉलमार्क है तो सोना है। For any further queries, visit the BIS website www.bis.gov.in. Stay smart, stay informed, choose quality, and let standards shape a safer and stronger future. Namaskar.